Hi, hello everyone. Good evening to everyone. So welcome to my Insta live sessions. It's me, your favorite anchor Mona Nisha. It's live today again. So yesterday I have given the update that today आज जो लाइव रहेंगे मेरे साथ वो है रोडीज़ की कंटेस्टेंट्स. यू हैव सीन हर. शी इज़ निष्ठा एंड निष्ठा थोड़ी देर में मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हैं. आप मुझसे बहुत सारे बातें करोगे. निष्ठा शी विल लाइन विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. सो उससे पहले आप सभी से चलिए बातें करते हैं. हाउ आर यू गाइज? सो लेट्स सी. रश्मिता कुजूर हाय एंड रॉकी राहुल हाय. मिस्टर पहराज हेलो. गुड इवनिंग रॉकी राहुल. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. ओके, सो सबको गुड इवनिंग एंड हाय हेलो. सो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स निष्ठा विल ज्वाइन and we will talk. We will have a lots of talk with her. And जैसे कि मैं कल बोली थी कि she is an roadie and she is a dancer, choreographer, and also she is very talented. As you know that she has saved somebody's life by giving 14-minute CPR to that person who had a cardiac arrest in the flight. She is on cabin crew also. So she is a real hero spirit. So we will have a lots of fun. We have a lots of talk with her within a few seconds. So Roadies Revolution, thank you Roadies Revolutions for joining. Sudha Purnamanti, hello. Good evening, Sudha Purnamanti. You are from? I am from Rautla. I am from Odisha, and she is from Kolkata. Nishtha Mukherjee, she is from Kolkata, and she will be joining with me within a few seconds, and we will have lots of fun talk and we will interact with you. Lots of fun we will have. So मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी जल्दी से मेरे सेशन पे ज्वाइन हो जाएं, बिकॉज आज की जो गेस्ट है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है. या सो रोडीज़ रेवोल्यूशंस 40 समझ में नहीं आया. 14 minutes CPR. 40 minutes is the landing. She will say all the details about that she has saved someone's lives. So वो बोलेंगे उसके बारे में आप सभी को, एंड और जितने भी हमारे उड़ीसा में पीपल है उनको भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत सारा मौका मिलेगा, बिकॉज शी इज़ अ रियल हीरो स्पिरिट एज आई हैव सेड यू. ओके, थिएटिकल ट्रिपलेट्स हेलो दीदी. हाय 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 एवरीवन. हाय. Roadies Revolutions India 40 minutes. Rakesh, no, it's 14. It's 14. Actually, I have asked Nishtha also. She said that is 14. 14. 40 minutes was the landing time. Flight landing time was 40 minutes, and she has given CPR to that person 14 minutes. For 14 minutes. She will say about that. Don't worry for that. You will know many things about Nishtha, and she will explain you in details that how she has saved somebody's life, and beyond that she is a dancer, choreographer, and also she is very talented and expression queen. So now I'm going to welcome Nishtha. Good evening Pradipta. Let's see. Within a few seconds she will come and we will have more interactions. Roadies Revolutions India. Okay, yeah, thank you Roadies Revolutions for your support towards us, because you have also given our updates on your stories and all. So thanks a lot Roadies Revolutions, and I'm glad. So now Nishtha will join with me. As I've told you, a real hero spirit is life, and also she is a renowned dancer, choreographer, and as you have seen in Roadies also, on Roadies, she has given a brilliant performance. So hi Nishtha, how are you? How are you? I'm good. How are you? I'm also good. So One second. बहुत excited Can है. you see me clearly? Can you clearly see me? Yes, yeah. I can hear you. Okay. Perfect. Yeah, tell me. Actually, पहली बात तो ये है, I like your cheeks. This one. Seriously, I like it. जब भी आप हंसते हो ये Thank जो you pink so much. होता है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है. Thanks By the a way, lot. You are very pretty yourself, yeah. thanks a lot. By the way, you're very cute and Bengali queen, I can say. Oh God, come on. You're just throwing bombs at me, right? One after one.
नो नो नो, लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। और आपका एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा है, हम लोग ऑलरेडी रोडीज में देख चुके हैं, Thank you so much. आपका performance बहुत ही अच्छा था। एंड Thanks a lot. दिल में भी आप Cheers to अपना that. नाइस। सो वी विल हैव लॉट्स ऑफ हाँ फन। जी। सो बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड थे कि निष्ठा लाइव आ रही है, निष्ठा से मिला, उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, उनका डांस परफॉर्मेंस भी अच्छा था, जो आपने बैटल दिया था कर्लिंग में वो भी बहुत ही मजेदार था। इस सारी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी रोडीज जरूर में जरूर। किए थे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, जैसे कि आपने मुझे रिसेंट कल बोले थे कि इट्स 14 मिनट्स, तो वो भी वही बोल रहे हाँ थे कि जी, वो थोड़ा 14 सा मिनट, कंफ्यूजन। वो भी वही बोल तो रहे थे, नहीं, ये 14 मिनट्स नहीं है एक्चुअली वो। व्हाट हैपेंड एक्चुअली इज मेरा 40 मिनट्स का लैंडिंग टाइम था। तो जब वो लोग एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे, तो होता है ना कि स्क्रिप्टेड होता है वो सारा चीज। 1 सेकेंड, हाँ प्लीज यार, मना করছি এখন চাই না। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, कीप इट। सॉरी, थैंक यू। God, my mother, she's in town and every 2 seconds she's knocking at my door. Sorry about that. It's okay, no problem. She loves you a lot, that's why she cares about Yeah, you. I mean, we don't stay together. However, like whenever she's in town, 24 घंटा वो पीछे पड़ी रहती है। Like कुछ भी हो, खाना बन ही रहा है घर पे और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ खाना ही बन रहा है घर पे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। और आप मैक्सिमम टाइम लाइव भी रहते हो, एंड अपने अपना काम से हाँ। निकल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड सीरियसली आप एक्सप्रेशन क्वीन तो बहुत ज्यादा हो, अरे एक्सप्रेशन क्या, क्वीन हो। वो तो आप लोग की दया से हो, वरना तो इट्स नथिंग लाइक दैट। बिकॉज मैंने देखा इतने लोगों ने जितने भी अप्रिसिएशन मुझे जब भी मिला है, तो बोलते हैं ना कि देखने वाले के नजरिए पे होता है। जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो सामने वाले के नजरिए पे होता है कि वो इंसान को क्यों अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक ब्यूटी लाइज ऑन द आई ऑफ द बी होल्डर, एंड आई वुड स्ट्रांगली होल्ड दैट स्टेटमेंट ट्रू। सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मैं पहली बार टेक्स्ट की, आपने सडनली रिप्लाई दिया, दैट वाज अ ग्रेट थिंग यू डिड इट। कि ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देते हैं क्या है क्या नहीं, एंड जैसे ही मैं बोली आपने सडनली रिप्लाई दिया एंड बोला कैन आई हैव लव टू आई विल डू इट। सो इट्स अ प्लेजर फॉर मी, लिटरली आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर दैट। सो पूछना चाहूंगे निष्ठा, थैंक यू सो मच। हाँ जी। इतना एंड अपने एक जन का लाइफ सेव किए, तो कैसा था उस टाइम पे, फीलिंग कैसा था? आपने एक स्टेप, एक रिस्क लिया। ये एक्चुअली ऐसी चीज है ना कि अगर मैं अपने वर्ड्स में बताऊंगी तो शायद उतना समझ में भी नहीं आएगा। बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें ना एक्सपीरियंस ही आपको बता सकती है। लाइक अगर आप उस पोजीशन में होते, उस सिचुएशन में होते, तो शायद तब पता चलता। एंड मेरे साथ जब हुआ था, मैं तब तक तो ब्लैंक थी, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि किसी इंसान को जब कार्डियक अरेस्ट होता है, ही डजंट नो बिकॉज वो अनकॉन्शियस होता है। उसके फैमिली मेंबर्स आजू बाजू थे एंड एवरी वन वॉज पैनिकिंग। एक तो आप 35,000 फीट में होते हो, बिकॉज फ्लाइट ऐसे एक कैबिन टेम्परेचर में है, आपको नॉर्मल ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। तो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन ऑक्सीजन मास्क वगैरह हम लगाते हैं। देर इज अ लॉट ऑफ लॉन्ग प्रोसेस, वी आर ट्रेन फॉर इट। तो लाइक सीपीआर के बाद अगर नहीं रिवाइव होता है पैसेंजर, तो वी जनरली गिव देम एमआरटी। तो देर आर अदर थिंग्स लाइक एक शॉक थेरेपी होता है, तो वी गिव देम शॉक थेरेपी एंड ऑडियो डिफिब्रिलेटर हम उसे बोलते हैं यूजुअली। तो देर आर वेज। तो थैंकफुली कि वो सीपीआर से रिवाइव हो गया एंड शॉक थेरेपी तक जाना नहीं पड़ा। वरना तो आई वॉज वंडरिंग लाइक लूजिंग अ लाइफ ऑन बोर्ड आपके हाथों से, आपके सामने। आई वुड हैव नेवर, बोलते हैं ना कि खुद को कभी माफ नहीं कर सकते हो फिर आप, कि चाह कर भी कुछ नहीं कर सके। एंड दैट वाज द डे आई रियलाइज कि यार डॉक्टर्स के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा, यू नो, लाइक when they also sometimes can't save a life. It's very easy जब हम यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर्स को कभी कभी कोसते कि ये डॉक्टर बेकार था, ये डॉक्टर ये था वो था, इसने बचा नहीं सका पेशेंट को। बट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आपको ऑनेस्टली पता ही नहीं होता है, बिकॉज यू आर नॉट गॉड, अल्टीमेटली यू आर जस्ट अ ह्यूमन बींग। आपके हाथ में जितना आप उतना ही कर सकते हो। तो एग्जैक्टली। उससे मेरे हाथ में जितना था मैंने किया था, बट आई गॉट लकी। क्या पता कोई और कुछ और भी, गॉड फॉरबिड, भगवान करे वो जहां भी हो अच्छे हो अभी। तो व्हेन ही रिवाइव्ड, हिज फैमिली वाज लाइक एवरीवन वाज क्राइंग एंड ऑनेस्टली मैं खुद भी रो रही थी। तो मुझे याद है कि सारे क्रू, एवरीवन वाज क्राइंग, सब वहाँ पैसेंजर्स। और लैंडिंग के बाद हम लोग इमरजेंसी लैंडिंग की थी हमने। और इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भी एकदम एक बहुत अलग सा ही माहौल हो गया था, इमोशनल।
तो इट वॉज लाइक अ मेमोरी जो मैं लाइफ टाइम याद रखूंगी, और मैं शायद बोलूं तो ये समझ नहीं आएगा, मेरी जगह कोई और होगा तो शायद उनको समझ आएगा हाउ इट फील्स जब आप किसी को ऑलमोस्ट मरते मरते वापस से लाइफ ले आते हो उनके अंदर। तो या सीरियसली, मतलब उस टाइम का फीलिंग कुछ अलग ही होगा। उसके लिए आपको जरूर फेलिशिएट या अवार्ड मिला होगा कि अपने जन का लाइफ सेव हाँ, किया। वी गॉट, मेरे पास है इंस्टाग्राम में भी, आई थिंक इट्स स्टिल देयर, आई पोस्टेड। ये 2017 17 की बात है, जब द पैसेंजर फ्रॉम सूरत हैड डन इट, और हम भुवनेश्वर को जा रहे थे डाइवर्ट होके। And when, I mean, after that, after landing, they gave us an award, appreciation, that Employee of the Month award, and then appreciation award. बहुत कुछ मिलता है। So I posted, but award वगैरह actually देखो वो सब बाद की बात है, वो सब सेकेंडरी होता है। बट दिस इज लाइक अ मेमोरी जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। एंड कभी भी, आई थिंक सीपीआर एक ऐसी बेसिक चीज है जो लोगों को पता होनी चाहिए। गॉड एग्जैक्ट फॉरबिड आपके घर में किसी को हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक चोकिंग की वजह से भी होता है बहुत बार। चोकिंग का अलग प्रोसेस होता है जो लोगों को पता होना चाहिए, बच्चों को बहुत होता है आजकल। बेसिक चीजें, किसी को स्विमिंग में भी सीपीआर देना पड़ता है बहुत बार, तो आउट ऑफ स्विमिंग, तो कोई अगर ड्राउन कर रहा होता है देन आपको सीपीआर देना हो सकता है एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो ब्रेथ तो देना ही होता है टू गेट द वाटर आउट ऑफ योर बॉडी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप हॉस्पिटल, बहुत बार हॉस्पिटल का टाइम नहीं होता है, क्योंकि अगर घर पे आपके कहीं पे किसी को होता है ना, तो आप सीपीआर देके एटलीस्ट टाइम खरीद सकते हो उस टाइम, कि मैं थोड़ा सा 1-2 घंटा उस बंदे, मतलब जो पेशेंट है उसके लिए 1-2 घंटा ले सकते हो, तब तक वो हॉस्पिटल एटलीस्ट पहुंचे, देन बाकी का ट्रीटमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली। तो या दिस इज लाइक, मैंने सबको बोला था उस टाइम दैट आई थिंक दिस इज बेसिक जो सबको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी वही चाहती थी कि हमारे उड़ीसा में वैसे ही बहुत चीजें होती हैं जिनको पता नहीं होता है, वो सेव नहीं कर पाते हैं, एंड आप कर लियो। मैं चाहती थी कि हमारे उड़ीसा के भी जितने पीपल्स है ना, वो लोग भी जाने कि एक रियल हीरो की तरह अपने कैसे नहीं सेव। यार, मैंने तो, आई जस्ट डिड माई जॉब, ऑनेस्टली वो मेरा जॉब था। आई मीन इतने महीनों की ट्रेनिंग की है। डॉक्टर अगर जान नहीं बचाएगा तो और क्या ही करेगा, वो भी अपना जॉब ही करते हैं। सो यस, डेफिनेटली फॉर मी दे आर द रियल हीरोज, बिकॉज आज जो पैंडेमिक सिचुएशन है, इफ यू लुक एट देम, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट। आई मीन लोग, इतना कुछ हो रहा है अभी, एंड वो लोग फिर भी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, लोगों को अभी भी उस हालत में पीपी सूट पहन के बैठे रहते हैं भाई। वो पीपी सूट इज crazy, like you can't imagine how terrible it is. People are literally wearing diapers because you can't use the washroom. You are in a diaper 24 hours, you have to pee in it, you have to do everything in it. So बोलते हैं ना, देख के बहुत सिंपल लगता है, but I'm sorry to say it's not as easy as you think. इट्स Imagine you नॉट wearing a diaper whole day in that PP suit and looking at patients, and सब कुछ करना पड़ रहा है, including surgeries. एवरीथिंग। जो देखने में इजी Yeah. लगता है वो होता नहीं है, जब अपने आप पर आती है ना तब पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली, सही True, बात है। true. अरे तो मेरे बारे यहाँ में बहुत हुआ, आप अपने बारे में बताइए। यू आर अ वंडरफुल एंकर, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है। एंड टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं तो उड़ीसा से हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपको मैं बताई, डायरेक्टली आपको टेक्स्ट की, देन आपने सडनली रिप्लाई दिया एंड जस्ट सेज कि या आई एम रेडी फॉर दैट। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपसे स्पेशली। अरे एंड प्लीज डोंट थैंक मी, आई मीन आई एम ऑलवेज एडिंग पीपल, मैं हमेशा लाइव जाती हूँ। आई डोंट नो अगर आपने फॉलो किया या नहीं, तो मुझे खुद अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट होना। तो इट्स लाइक माई प्लेजर कि मुझे मौका मिला आपके साथ बात करने का, और थोड़ा बहुत जानने का। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज गुड, मेरी स्टोरी। श्योर। अब अपनी स्टोरी बताइए। आई थिंक नेटवर्क, इज इट बैक, इज इट फाइन नाउ? जूम हो गया, हाँ बेटा। फाइन। एक्चुअली कॉल आ गया बेटा बीच में किसी। सो हाँ। कोई बात नहीं, uh, होता है। हाँ, हाँ तो जी, फिर ऐसा ही चल रहा है तो अभी आप तो। अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हाउ डिड इट स्टार्ट, मतलब आपको एंकरिंग का शौक अचानक से एकदम से कैसे हो गया ये, हाउ कम?
पहले मुझे डांस बहुत ज्यादा पसंद था। डांस करते करते मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कभी एंकरिंग भी करूंगी, तो एक जन ने चांस दिया कि दैट यू शुड ट्राई फॉर दैट। देन मैं बोली कि ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं होता है कि नहीं। देन जब कोशिश की तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद एक एक स्कोप मिलते गया। एक जन ऐसा बोला कि नहीं अच्छा हो रहा है, और एक स्कोप देते हैं, और एक स्टेज पे परफॉर्म करने देते हैं। ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुंच गई। फिर बहुत ही अच्छा लगा। मैं कभी सोची नहीं हूँ, मेरे को डांसर बनने का बचपन से बहुत ज्यादा शौक था। डांसर से फिर वाह। थिएटर एक्टिंग, एज यू नो राधा कृष्ण भी थिएटर एक्टर है। ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स, हाँ जी। एक्टिंग भी थोड़ा बहुत सीखने मिला। एज यू नो उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट है, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहां पर एक आई सर नो एनआईटी, निट। एनआईटी, या तो फिर वहां पर एक सर थे, नलिनी निहार नायक सर। तो वो एक स्टूडेंट एक्टिविटी ऑफिसर है, उसके साथ वो बिस्मिल्लाह खान अवार्डी एक डायरेक्टर भी है। तो वो ट्रेनिंग वगैरह दिए, तो उनके थ्रू कुछ स्कोप्स मिला एंड एक्टिंग का भी जान थोड़ा सा जानने के लिए मिला। फिर उसके साथ मैं आगे बढ़ी एंड आई वाज डूइंग फॉर दैट। बहुत अच्छा लग रहा है, ये लाइन भी बहुत तो चल रहा है वैसे। लेकिन मैं तो आपका कितने डांस साल की, से आपके डांस आप बड़ी फैन हूँ एक्चुअली, बिकॉज आप एक्सप्रेशन को जैसे आप ऑडिशन में परफॉर्मेंस दिया था ना, लिटरली इट वाज अमेजिंग। सो मैं आपके बारे थैंक में यू सो जानना मच, चाहूंगी। आई एम ग्लैड आप सबको अच्छा लगा। हाँ, एंड सीरियसली मैं जब भी आपको देखती हूँ या मैंने फोटोज जो भी हो, पहली बात मैं आपका चिक्स को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जब आप हंसने लगते हो पिंक, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं क्या ही बोलूं, ये बस चीक्स तक ही रह गई है मेरी जिंदगी, कभी कभी लगता है। तो फिर रोडीज में हाय कैसा आना शौर्य। फर्स्ट, रोडीज में कैसा? रोडीज का स्टोरी बहुत ही इनवॉलेंटरी था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मैंने प्लान नहीं किया था। तो आई वॉज गोइंग फॉर अ रैंडम, किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, फिर मेरे एक फ्रेंड को जाना था। उन्होंने बोला चलते यार, मेरे को जाना है, मैं भी अकेले नहीं जाना चाहती हूँ, तो लेट्स गो फॉर द ऑडिशन। शी वाज क्रेजी फॉर रोडीज, उन्होंने पहले भी ऑडिशन दिया था। तो आई वाज लाइक ठीक है चलो, कोई नहीं, अच्छी बात है। देन आई जॉइंड हर टू अकम्पनी हर एक्चुअली। मतलब बेसिकली मैं सिर्फ ऐसे ही, उनको बोलते हैं ना सहानुभूति के लिए जाना टाइप, वैसा सीन था। तो कोई वो सब कुछ हुआ एंड व्हेन आई रीच देयर, हम लोग बहुत लेट पहुंचे, 4:30 बज गए थे तब। और लिटरली सब बंद हो रहा था, लाइक ऑडिशंस खत्म हो चुके थे, और इन्होंने हमें बोल दिया कि मैम आप लेट आए हो, तो यू हैव टू गो बैक। फिर उसके बाद? तो एंड देन ये सारा कुछ खत्म होने के बाद 4:30 बजे हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, एक दो जन जान पहचान के थे, तो मैंने बोला कि सर अरे यार प्लीज, इतनी दूर आए हैं, जाने तो दे दो एटलीस्ट अंदर। फिर किसी तरह हम अंदर गए। सिर्फ एक या दो लाइन था, मुश्किल से खत्म हो रहा था सब कुछ, ऑडिशंस चालू हो रहे थे, जीडी राउंड चल रहा था, मुझे अभी भी याद है। मैं किसी तरह लाइन वाइन, हाँ, तो मैं लाइन वाइन तोड़ के ना ऐसी स्किप करके अंदर कैसे कैसे तो घुस गई, और फॉर्म भर रही थी। और ज्यादा भीड़ थी नहीं, तो वो लोग हमें भी जल्दी जल्दी लाइक भगा रहे थे कि भाई अंदर जाओ, खत्म करो, हमें भी घर जाना, हम सुबह 6 बजे से बैठे हैं यहाँ। So I was like, okay, fine. We went inside, एक ग्रुप था 10 जन का, ऐसे चेयर में राउंड टेबल पे बैठे, सामने में जजेस थे 2 जन। तो वो लोग प्रोडक्शन टीम से थे। नॉर्मली लाइक मेरी फ्रेंड बाजू में बैठी है, और रैंडम क्वेश्चन, मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ भाई बोलूं क्या, मैं थोड़ी ना प्रिपेयर्ड होके आई हूँ, मेरे को पता ही नहीं है क्या करना है। तो शी वाज लाइक अरे कुछ भी बोल दे, इट्स नो बिग डील, कोई फर्क नहीं पड़ता। So I was like, okay, fine. Then the guy asked questions one by one कि 1 minute intro दो। अब मुझे हमेशा से आदत थी, यूजुअली लाइक मैंने इंटरव्यूज बहुत दिए अपने लाइफ में, तो मैं हमेशा इंटरव्यूज में चली जाती थी, कोई भी काम का इंटरव्यू हो, कुछ भी, मुझे लगता था ना एक्सपीरियंस मिलता है इंटरव्यू देने से। तो आई वेंट एंड उन्होंने मुझे ऐसे रैंडमली क्वेश्चन पूछा, और मैंने बता दिया। लास्ट में पूछते कि रोडीज क्यों। तो मैं बोली ओके, मैंने कभी फॉलो तो किया नहीं है रोडीज, तो आई टोल्ड हिम द ट्रूथ कि सर देखिए ये सच्चाई है, मैंने कभी ऐसे खास कोई रोडीज फॉलो नहीं किया, बट लाइक अभी मैं आई हूँ तो ऑब्वियसली आई मीन मैं क्या ही बोलूँ, बट आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो लाइक अभी चाहिए कि नहीं, ये बताओ, वरना उधर दरवाजा है, निकल लो ना, आपके जैसे और 50,000 लोग हैं जो वहां बैठे। सो ही गॉट ऑफेंडेड। उसके बाद मैंने बोला, आई लाइक नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं इतनी दूर आई हूँ, तो यहाँ तक आई हूँ, तो आई विल डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। Yeah. तो दैट फाइन, देन शो मी योर टैलेंट, कोई टैलेंट है तो टैलेंट दिखाओ, डांस करने बोला तब। आई थिंक डांस वाज द मेजर क्राइटेरिया वेयर, जिसकी वजह से एक होता है ना कि स्पार्क क्रिएट हो जाता है, कि आपको एक चीज में अच्छे हो, और अगर वो एक चीज आप किसी के आंख में आ जाता है, तो वो वहीं पे हो जाता है सारा काम।
तो उन्हें मेरा डांस पसंद आया था एंड देन बैटल भी कराया तो मेरे मेरे फ्रेंड के बीच कराया, वही फ्रेंड जिसके लिए मैं गई। आई वो लाइक हे भगवान, ये शो रहे ना रहे मेरी दोस्ती जरूर खत्म होने वाली है, ये तो श्योर है मुझे लगा। वो अच्छा डांस के बीच में बैटल करवाए या फिर रोस्टिंग वगैरह करवा दी वो लोग फ्रेंड्स के वो बीच में? हीरोज नहीं, दोनों ही डांसर थे, वो भी बहुत अच्छी डांसर है एंड शी इज अ कोरियोग्राफर इन कैलकाटा। तो हम दोनों को बैटल करा दिया, किस्मत उनकी ये खराब थी कि आई एम अ कंटेम्प्रेरी डांसर, तो मैं कंटेम वाला ही गाना बज गया, और वो हिप हॉप डांसर है थोड़ा सा वैसा। अब उनके पसंद का गाना बजा नहीं, आई लाइक ये तो बहुत ही गलत सीन हो गया। हाँ, फिर उसके बाद? तो फिर उसके बाद लास्ट में ही आस्क्ड मी, आई रिमेम्बर, सब जा रहे थे तो ही आस्क्ड मी वेट, आप रुको बाकी सब जाओ। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। फिर मैं रुकी, मैं एकदम डर गई थी उस टाइम, मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मैं क्या ही बोलूं। फिर मुझे लग रहा था ये अब मेरी बजाने वाला है, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट रोडीज का ना 2010 वाला था, जब वो रघु राजीव वाला हुआ करता था। उसके बाद हाँ। मैंने कभी देखा ही नहीं। तो मैंने उनको बोला, जब भी उन्होंने खड़ा किया, कि सर देखिए मैं बहुत ही प्यार से आई हूँ, प्यार से ही यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी रोस्टिंग मत कराइएगा, बजाइएगा मत मेरी। तो वो हंसने लग गया। डायरेक्टली में बोली? डायरेक्टली डायरेक्टली मैंने लिटरली वर्ड टू वर्ड यही बोला था हिंदी में। तो ही इज लाइक हम क्या इतने खूंखार दानव जानवर दिखते हैं आपको? आई वाज लाइक हाँ, नहीं जाएगा तुम्हें? लाइक नहीं नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ, मूड थोड़ा खराब हो जाएगा अगर फालतू में सुनाओगे 10 बार तो। सीरियसली अब फिर फ्रेंड मिला होगा, फिर उसको भी बताओ, उसको भी थोड़ा बहुत सुनाओगे, फिर उसका थोड़ा रोस्टिंग होगा, फिर लिटरली बच नहीं, जाएगी। उनको सबको भेज दिया बाहर, सबको जाने बोल दिया, सिर्फ मैं अकेली थी वहां रूम में। हाँ। सो आई वाज लाइक, मैंने ऐसे प्यार से बोला तो उनको बोला कोई नहीं यार, तेरी रोस्टिंग नहीं करेंगे हम, ऐसी तुम्हारी बस क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, थोड़ा जानना चाहते हैं आपके बारे में। ऐसा ओके। फिर ऐसे पूछा कि आपने क्या किया है लाइफ में। तब ये क्वेश्चन था मोस्ट हीरोइक मोमेंट जो आपके लिए रहा है, तब मैंने यही जवाब दिया था। एंड ये सेकंड रीजन था जो उनको, आई थिंक शायद यही रीजन था जिनकी वजह से उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया होगा, कि एक तो वो डांस एंड देन ये सीपीआर वाला सीन। फिर मुझे बाद में ये नहीं पता था पीआई राउंड में ये लोग डब्बा पकड़ा देंगे यार, ये एक क्यूब क्यूब जैसा था, वो डाइस था एक एक्चुअली। रणविजय सर ने मुझे डाइस दे दिया, बोलते इस पे सीपीआर करो। बोले अरे भाई, इसका से इंटर मेमोरी लाइन दिख नहीं रहा है, बॉडी पार्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे करूं? लाइक दिस इज लाइक अ टास्क ऑलरेडी, वाह। बिकॉज सीपीआर इज समथिंग, आप जब भी दोगे आपको बॉडी एक ह्यूमनली फिगर तो चाहिए कम से कम। एग्जैक्टली। हाँ। क्यूब एक, अभी कोई बोलेगा चेयर खड़ा कर दिया भाई, या चेयर पे सीपीआर करके दिखाओ, चेयर को सीपीआर समझो, वो बॉडी है किसी का। तो फिर भी मुझे उस टाइम करना था क्योंकि ऑप्शन नहीं था। एंड आप डर भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, और डर तो अंदर लग रही थी पर वो शो नहीं कर सकते कि लाइक इतने लोग वहीं पे रिजेक्ट हो जाएंगे, मुझे पता था फिर तो बहुत ऊपर सारी मुझे चीज, और एक आदमी, एग्जैक्टली ऊपर से वो बहुत टैलेंटेड होस्ट भी है, और उनके सामने परफॉर्म करना थोड़ा सा गड़बड़। exactly, इतने सारे थे यार, रफ्तार, प्रिंस नरूला एंड देन नेहा मैम, सबके सब बैठे थे। एंड इतनी कैमरा, इतनी लाइट्स लाइफ में आज तक मैंने नहीं देखी है, लाइक ऑनेस्टली। घुसते ही इट वाज लाइक कैमरा 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 कैमरा, मैं इतना, और चारों तरफ सर के पीछे से कैमरा से गोल गोल घूम रहा है, ऊपर से नीचे कैमरा आ रहा है, फिर पीछे से कैमरा जा रहा है। I'm like, ये हो क्या रहा है? इट वाज टू मच। कैमरा के अंदर घुस गए हैं और कैमरा मेरे तरफ चारों तरफ घूम रहा है, और मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा करना है, नहीं तो आज मैं कुछ गलत भी करूँ पकड़ी जाऊंगी, स्क्रीन के ऊपर आ जाऊंगी। आई स्वेयर, एंड चारों तरफ मतलब आई कुड ओनली सी द जजेस, क्योंकि लाइट्स ऐसे उन लोगों ने अरेंज करे थे कि आपको पीछे लोग बैठे भी है तो दिखेगे नहीं, इतना लाइट था। और इक्विपमेंट्स रखे हुए, सेटअप बहुत अच्छा था उनका, तो सेटअप इज लाइक देख के डर लग जाएगा कि कहीं आप बोले ना भैया वहां चढ़ जाओ, वहां चढ़ जाओ, पुशअप करके दिखाओ, पुलअप करके। इट्स लाइक अगर ये बोले अभी मेरे को वो रस्सी पे चढ़ो, और एक्चुअली उन लोगों ने काट दिया, एक रस्सी पे चढ़ने बोला था, मैं चढ़ भी नहीं पाई, रस्सी चढ़ के घंटी बजाना था। हाँ हाँ हाँ, वो टास्क था, बहुत जन को मिला था वो वाला। हेलो, माय वॉइस इज ऑडिबल? या तो ऑल दैट वाज देयर, एंड देन मैं किसी तरह थोड़ा बहुत आधा रस्सी चढ़ के फिर उतर गई थी, आई सेड मैं बाद में चढ़ूंगी, नेक्स्ट टाइम मैं प्रैक्टिस करके आऊंगी। कल उनको बोल देते मैं कल में प्रैक्टिस करके आऊंगी, इस बार सिलेक्ट कर लो मेरा करने डांस। में फायदा ही नहीं हुआ, प्रैक्टिस की कोई फायदा नहीं हुआ।
लेकिन बहुत अच्छे बट परफॉर्मेंस, फिट अच्छे। ओवरऑल इट वाज, yeah, I mean, overall it was a nice experience because बहुत कुछ जानने को मिलता है। आप इतने तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत बहुत जगह से, दूसरे आई मीन कोई बैंगलोर, कोई दिल्ली, कोई मुंबई, इतने सारे कंटेस्टेंट्स, तो सब में इतना टैलेंट है ना, मतलब लगता है जैसे मैंने जिंदगी में किया ही क्या अभी तक। उनको देख के मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो एवरी बहुत वन इज टैलेंट। friends बन गए होंगे रोडीज में एक्चुअली, जैसे कि भावेश, कैसा लगा जब वो फिर से एंट्री किया रोडीज में, वाइल्ड कार्ड ओ एंटर? गॉड, भावेश इज स्वीट हार्ट। एक तो वो बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो हमारे लिए ऐसा होता है ना कि मैं उसको तारीफ भी नहीं कर सकती, उसको पचेगा नहीं मेरा तारीफ। ओ मैं यूजुअली यूजुअली हमेशा उसको कुछ ना कुछ सुनाती रहती हूँ। हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन भी किए थे, कुछ टेक्स्ट भी किए थे, जिस वजह से हम लोग के कन्वर्सेशन के बीच में उनका टेक्स्ट मिस हो गया, लेकिन बहुत कुछ आपके बारे में लिखे थे, बहुत प्यारी प्यारी लाइंस आई थिंक। भावेश ने कुछ बकवास करी होगी, 100% कुछ बकवास करके गया है लड़का। वो एक कैलिथेनिक्स एथलीट है, आई थिंक कैलिथेनिक्स हाँ एथलीट, हाँ हाँ, कैलिस कैलकुलेटर। बहुत तो ही ही इज टैलेंट। मल्टी टैलेंटेड, वो बंदा तो बहुत टैलेंटेड है। आई मीन अभी भी लाइक, भले वो अलग बात है कि दोस्ती आ रही है, मैं जितनी भी बेइज्जती कर लूं उसकी, बट बंदे में जो टैलेंट है, आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ पीपल, नॉट इवन 1% ऑफ गाइज लाइक हिम, जो इतना डेडिकेटेड और फोकस्ड है लाइफ में। लाइक फिटनेस को लेके पागल है वो वाह, खाता भी खाना है, खाना खाते टाइम से वीडियो कॉल करके बोल रहा है, भाई तू देख मैं क्या खा रहा हूँ। लाइक तुझे शर्म नहीं आ रही है? वो तो ही लिखा इज एन अमेजिंग गाय। तो समथिंग कुछ मैगी वगैरह कुछ लिखे थे कि तुम मैगी खा रही है झूठी, वैसे कुछ लिखे थे, मैं पढ़ी थोड़ी बहुत, तो वही चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी आपने कमा लिया वहां पर जाके, बहुत सिलेक्ट। बहुत एक्चुअली, देखो मैं तो कहती हूँ शोज हमेशा ना आते जाते रहेंगे आपकी लाइफ में, शोज आएंगे और चले जाएंगे। इंसान कितना दिन याद रखेगा कि रोडीज कितने साल से चल रहा है? क्या आपको भी याद है सारे कंटेस्टेंट, कितने कंटेस्टेंट है? बहुत सारे किसी को कंटेंट। याद नहीं रहता यार, कितने पिछले 10-15 साल से कितने लोग आए हमारे जैसे, बट किसी को अब कोई याद नहीं रखता है। वो एक मोमेंट होता है आपका जब याद रखेगा, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। बट what stays with you after the show is these relationship that you make, ये दो दोस्त आप बनाते हो, जो मेमोरीज बनाते हो, अल्टीमेटली यही रह जाता है। ले जाता है, सही बात है। कुछ प्लानिंग वगैरह भी की होंगे कि आफ्टर दिस अभी ऑडिशंस तक तो नहीं, कुछ लेट्स तो सी, सोचो। थोड़े बहुत प्लान्स है, छोटे मोटे प्लान्स है, लेट्स सी क्या होता है। जरूर कोशिश हो, कर रही हूँ मैं, जो होगा। एग्जैक्टली जरूर। वैसे मैं पूछूंगी, जो इतने चार जजेस बैठे हुए थे रोडीज में, सबसे अच्छे कौन थे, मतलब आपके लिए कौन बहुत ज्यादा अच्छा था, मेरे फेवरेट? लिए सबसे अच्छे इज रफ्तार सर एंड निखिल चिनप्पा। उनसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ है शायद ये दोनों जजेस से। आई डोंट नो बट इंटरेक्शन, बट इंटरेक्शन तो देखो खास उतना किसी से हो नहीं पाता, बिकॉज वो लोग बिजी रहते हैं। वो लोग बस शूट के लिए आते हैं, फटाफट सेट पे रहते हैं, एंड हमारा उतना कुछ खास इंटरेक्शन नहीं होता है। भाई पीछे में थोड़ा बहुत खाने वाने टाइम हल्का फुल्का जो हो जाता है, वरना तो अभी इंस्टाग्राम में थोड़ा बहुत जो रिप्लाई कर देते हैं वो उतना ही। एंड चलो, रिप्लाई करते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, रिप्लाई हाँ, कर। ऑब्वियसली, आई मीन एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत भी जो कभी कभी रिप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अ लॉट। तो एग्जैक्ट। आई मीन रफ्तार सर इज दैट पर्सन जो इंसान ना खुद खाना खाने से पहले चेक करता है कि सबको खाना मिला है कि नहीं। वो लाइट मैन जो चाय देता है वहां पे, उसके पास भी आता है, भैया आपको खाना मिला, आपने खाया खाना? सबको, लाइक ही मेक श्योर, सो ही इज अ वेरी पूछते गुड ह्यूमन बीइंग। यस, वाह, ही डज दैट। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एंड वो वो आदमी थोड़ा अलग सा है, मतलब लाइक वो अपने चौड़ में नहीं रहता है, ऐसे कि वैनिटी वैन से निकला और उसके पीछे लोग चल रहे हैं और उसके फोटोज खिंचा रहे हैं। मुझे अभी भी याद है, एक बंदा फोटो खींचने के लिए बहुत देर से दूर में खड़ा हुआ था मेरी इसके टाइम, पीआई के टाइम, बस बहुत देर से साइड में खड़ा है। वो कोई ट्रू मतलब क्रू मेंबर ही था, तो क्रू मेंबर्स भी उतना उनसे मिल नहीं पाते। तो वो बेचारा उनको ना दिख गया, वो बोला अरे भाई तू इतने देर से खड़ा है तो आके खींच क्यों नहीं लेता है फोटो, तू इधर आ जा, फोटो क्या तू अच्छे से मेरे साथ ना बात कर इधर बैठ के। तो ही इज लाइक दैट, बहुत अच्छे इंसान है वो। सो निष्ठा, आप तो कोलकाता से हो, मैं भी कोलकाता विजिट की हूँ शोज के ये में, बट कभी आप उड़ीसा विजिट किए हो निष्ठा? उड़ीसा हम लोग कहाँ पे? visit उड़ीसा, हाँ हाँ बिल्कुल, उड़ीसा में आई हैव बीन टू भुवनेश्वर, आई हैव बीन टू और कौन सा जगह, आई थिंक भुवनेश्वर ही मोस्टली मैं गई हूँ। पूरी पूरी गई हूँ मैं। वाओ। पूरी हाँ, तो वो तो अच्छा जगह है, उड़ीसा का सबसे बेस्ट प्लेस। हाँ एग्जैक्टली, तो वो तो सबसे फेमस है। और या
that these are the two places जहाँ मैं गई हूँ. तो कभी अगर फिर से ओडिशा आने के लिए मौका मिला तो प्लीज मेरे घर पे विजिट करिएगा. आई विल बी ब्लेस्ड एंड आई विल बी वेरी हैप्पी. एकदम माय हाउस. 100%. कोई चांस ही नहीं है कि मैं छोड़ूंगी. मैं तो बोलूंगी देखो मेरा रहना खाना सब कुछ सॉर्ट होना चाहिए. मुझे घर का खाना चाहिए वहां आके. सो मेक श्योर आंटी के हाथ का खाना मिलेगा मुझे. एग्जैक्टली. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्ट करके. एंड आपके लिए कुछ बहुत प्यारी प्यारी फनी फनी रैपिड फायर क्वेश्चंस भी रखी हैं जो कि आज मैं पूछूंगी. यू विल हैव लॉट्स ऑफ प्लीज फन. प्लीज. आई सो लव इट. क्वेश्चन ना, who thinks you are beautiful when you wake up in the morning? Who thinks you are beautiful? Nobody. Literally nobody, I think. Only my fans probably who are just watching क्योंकि मैं सबसे पहले Instagram खोलती उठते. So I get a lot of beautiful messages. Ma'am, you're so pretty. You're so this, that. So I think my Instagram followers, I love you guys. So you guys always message me such cute things. वाह, वेरी नाइस. सबके लिए बहुत सारा प्यार है. एंड मुझे भी पता चला है मेरे लिए भी बहुत सारा प्यार आ चुका है. एंड रियली में मेरे को पता भी चला बिल्कुल. हो और बहुत अच्छा बातें भी कर रही हो. लेकिन उससे पहले आपसे ही पूछ लूंगी, हाउ आर यू रियली एक्चुअली? रियलिटी क्या है आपका? मतलब आप कैसे हो? हाउ आर यू रियली? how am I really, as in how I live my life every day, day to day? या So I'm a person who likes to travel a lot. I'm a travel freak क्योंकि मैं एक cabin crew थी पहले. So मुझे ट्रैवलिंग का इतना शौक है कि मैं अपने बर्थडे में भी पिछले 3 साल से मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ. एक बार तो मैंने एक दिन पहले ही किसी को बिना बताए थाईलैंड चली गई थी एंड बैग पैक कर लिया था. किसी को बताया नहीं. वो भी 14 या 15 दिन के लिए. इज लाइक मैं तो जा रही हूँ. तो मेरा ब्रेकअप हुआ था. मतलब सच तो फनी. एग्जैक्टली. तो वो मेंटल स्टेट भी था एक तो कि भाई चाहिए अब तो चाहिए मुझे थोड़ा ब्रेक. बहुत हो गया. तो ब्रेकअप के लिए आई नीडेड अ ब्रेक एंड द ब्रेक वाज टू ट्रैवल. एंड आई थिंक हर चीज का सोल्यूशन ट्रैवल है. मेरे लिए तो है. आप कभी भी ट्रैवल करो आपको हमेशा लगेगा जैसे अगर डिप्रेस्ड हो अगर कोई भी डिप्रेशन में है. आई थिंक मैं तो हमेशा सलाह देती हूँ भैया ट्रैवल करो. आपको पता चलेगा लाइफ में लोगों के कितने प्रॉब्लम है तो आपको अपनी प्रॉब्लम कम लगेगी. बिकॉज यू विल गेट टू मीट सो मेनी न्यू पीपल इंटरेक्ट विद देम. उनकी स्टोरीज सुनो एंड आपको एक अलग सी खुशी मिलती है जब आप लोग नए लोगों से मिलते हो और नई जगह एक्सप्लोर करते हो. आई थिंक द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेस एंड यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर. एक पीसफुल जगह में बैठ के सोचोगे समझोगे बात को फिर फील करोगे. बिल्कुल. भूल जाओगे फिर याद ही नहीं आएगी. वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब अकेले कहीं जाके घूम के ट्रैवलिंग करो. बहुत बड़ा मजा आता है. स्पेशली आप अगर स्कूटी में जाओ या फिर कार में जाओ अपने खुद कैसे भी जाओ. आई मीन देखो बजट मैटर नहीं करता. छोटी जगह पे जाओ. हो सकता है आप ट्रैकिंग पे चले जाओ आपके हिसाब से आपके बजट पे जो आपको सूट करता है उस हिसाब से जाओ. बट आई थिंक इट वर्क्स फाइन. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज. सो ट्रैवलिंग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बुक्स का पसंद है. आई लाइक टू रीड बुक्स. नेटफ्लिक्स में मैं गंदी से गंदी मूवीज देख सकती हूँ कितनी भी बोरिंग हो पर मैं देख सकती हूँ. साउथ इंडियन मूवीज भी नहीं छोड़ी मैंने. लॉकडाउन में कैसे क्या स्पेंड किए? कैसे करके? कुछ डांस करके या फिर वर्कआउट करके? लॉकडाउन में ऑनेस्टली आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे लॉकडाउन में मैं ऑफिशियली कांता बाई थी घर की. टू बी ऑनेस्ट मैं पूरी कांता बाई थी. खाना झाड़ू बर्तन सब कुछ किया है पूरे 5 महीने. तो क्योंकि मैं फैमिली के साथ थी मम्मी पापा सब थे. माय मॉम वाज वर्किंग तो कोई ऑप्शन नहीं था करना ही पड़ता. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड स्केचिंग. अभी क्या चल रहा है मतलब जॉब वगैरह या फिर कुछ? अभी आई एम इनटू इवेंट. तो मेरी इवेंट कंपनी है एंड आई डू इवेंट्स. तो या इवेंट्स किस टाइप का इवेंट्स आप करती हो? वेडिंग कॉर्पोरेट ऑल सॉर्ट ऑफ इवेंट. वाओ. If I get a chance, I will definitely visit there. Seriously. प्लीज कोई भी इवेंट होगा आई विल डेफिनेटली लेट यू नो. एंकर तो आप हो ही which I already know. अब मुझे जान चुकी हो शायद अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा. डेफिनेटली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे हम. वैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एंड इफ आई गेट अ चांस देन मैं आपको पहले बुलाऊंगी कि आप आओ. बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. एकदम 100%. I just like to clear one thing. Okay, Shaurya Singh Rathore. Hi, I would love to reply you, but firstly, this is for everyone जो बहुत देर से बोल रहे ऐड कीजिए. ये लाइव एक्चुअली एक सेपरेट लाइव है. इट्स अ पर्सनल लाइव गाइस जिसपे मैं हम दोनों ने ये बहुत
टाइम से प्लान किया था, एंड ये इन्होंने होस्ट किया है, एक्चुअली इनका लाइव है, तो इनको काफी सारी चीजें हमें डिस्कस करनी थी। तो मैं नेक्स्ट जब भी लाइव आऊंगी अपने अकाउंट से, आई डेफिनेटली ऐड यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, एंड दिस इज अ कंप्लीट सेपरेट लाइव। अगर आपको मेरे बारे में जानना है, प्लीज स्टे देयर एंड लिसन टू द लाइव। थैंक यू Yes, सो मच for your cooperation, Insta. Seriously, you're very nice. Proud of you. आप सभी का रिप्लाई दे रहे हो, सबको बहुत अच्छे से बोले हुए कि ये एक सेपरेट लाइव है, ऑल एवरीथिंग, आप उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दिए, तो थैंक्स अ लॉट। सबको ही आपको बहुत प्यार इट मीन्स अ लॉट टू मी। These people are sweet यार, everyone is so nice। मैं जब भी लाइव जाती हूँ, you won't believe, मेरा तो मतलब आई मीन मुझे ऐड, आई विश इंस्टाग्राम में कोई फैसिलिटी आ जाए कि एटलीस्ट 5 6 7 के एक साथ ऐड कर पाए। आई मीन आई गेट सो मेनी पीपल ऑन रिक्वेस्ट, और मुझे सबको ऐड करना अच्छा लगता है, और दे आर सो स्वीट। कमेंट सेक्शन पढ़ के इतना अच्छा लगता है, बिकॉज वो लोग सब इतना प्यार बरसाते हैं आपस में। अभी तो दोस्त बन गए एक दूसरे से, मेरे लाइव में आके आपस में चैटें चल रही है कमेंट सेक्शन में, अरे भाई तू कैसा है, तू कैसा है। और टाइम में रिप्लाई भी करते हो। जो रिप्लाई करते हैं ना, उनके साथ बातें करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि नहीं, इनसे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। रिप्लाई ट्रू सडनली, ट्रू। तो वो चीज अच्छा है। अगर कोई रिप्लाई नहीं करेगा, रेस्पॉन्स नहीं देगा ना, वो ऐसे सोचेंगे कि नहीं, इसके ईगो ही रिप्लाई नहीं देती, छोड़ दो इसे। लेकिन आप रिप्लाई सडनली देते हो कि इंटरेक्ट करने के लिए लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी है, इंटरेक्ट। मतलब कभी कभी मुश्किल होता है, आई वोंट लाई, मतलब आई अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस जब होते हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है, बट आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है, बट आई डेफिनेटली रिप्लाई। मैं कोशिश करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ, मे बी एक दिन बाद या 2 दिन बाद, बट जितना जल्दी होता है मैं रिप्लाई तो सबको ही करती हूँ। आई होप, आई मीन पीपल हु हैव गॉट माई रिप्लाईज वुड अग्री टू इट। आप भी होस्ट हो, आई थिंक मैं कुछ कुछ वीडियोस आपका आई थिंक यूट्यूब में देखी हूँ। सो आप हाँ, थोड़ा बहुत, आई मीन वो तो यार इवेंट लाइन में कर सब कुछ करना पड़ता है। जब बजट कम हो तो आप ही होस्ट हो, आप ही इवेंट मैनेजर हो, आप ही सब कुछ हो। अच्छा है, लेकिन होस्ट भी अच्छा करते हो। लेकिन एक्चुअली आपका एम क्या है? डांसर बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, या फिर एक्टिंग में जाना है, या फिर होस्टर बनना है? गुड क्वेश्चन। ऑनेस्टली मेरा ऐसा कोई बहुत ही वियर्ड रिप्लाई होगा। मेरा एक्चुअली में कोई, आई एम अ पर्सन जो वो बिलीव्स के सामने में जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब कर लो। कल का किसी को पता नहीं, भैया कल जिंदा भी रहेगा कि नहीं यही नहीं पता है। तो ये गोल सेट करके मुझे 24 घंटा खुद को बॉदर करना, या अगर नहीं हुआ तो डिप्रेस हो जाऊंगी कि ओ शिट, मैंने इतने सालों से एक गोल सेट कर रखा था, मुझसे नहीं हुआ, फिर बुरा लगेगा। वो सीन मेरे को चाहिए ही नहीं। आई फील जो भी होता है, गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, समथिंग और द अदर विल फिगर आउट। बट हाँ, गिव योर 100%। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दो। हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो लाइफ हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। वैसे बचपन में क्या ड्रीम था एंड अभी क्या हो गया? कभी कभार चेंज होता है ना बचपन में। बचपन में मेरा डांसर बनने का ड्रीम था हमेशा। फिर अभी आप इवेंट। सबसे ज्यादा बोलते हैं भैया तो डांसर मत बनो, कुछ और कर लो। अल्टीमेटली नोट छापने ही होगे। हाँ, वो तो सही बात है। बहुत सारे लोग ने टेक्स्ट किया है, तो उनका टेक्स्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं अभी इस बीच में। हाँ जी बिल्कुल। मैम, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन। मैम, आई लाइक योर डांस। शौर्य सिंह ने लिखा है। थैंक यू शौर्य, ही इज अ स्वीट हार्ट। आई थिंक ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 50 से 60 के ऊपर लोग टेक्स्ट किए हैं। कुछ लोगों का स्किप हो चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग का टेक्स्ट मुझे। सो हाय निशु, सॉरी सिंह मैम, बिग फैन मैम, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, अभी मैम रिप्लाई। शौर्य मैं जरूर रिप्लाई करूंगी यार, एकदम 100%। जब मैं नेक्स्ट लाइव आऊंगी तो प्लीज ज्वाइन माई लाइव। या श्योर। वैसे मैं बोलूंगी शिबू इल्लू, वो हमारे उड़ीसा से हैं, राउरकेला से हैं। सो ही हैज आल्सो रिटन फॉर यू दैट हाय निष्ठा दीदी। हाय शिबू, हाउ आर यू, कैसे हो आप? प्लीज मेरा लाइव ज्वाइन करना, जब भी आपको मुझसे बात करने का मन हो, प्लीज फील फ्री टू ज्वाइन माई लाइव सेशन। आई लव टू ऐड यू। मेरे भी जितने फॉलोअर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि निष्ठा को फॉलो करे। एंड निष्ठा से प्लीज फॉलो मोनाली, शी इज अमेजिंग, शी इज अ वंडरफुल एंकर, एंड आई डोंट नो अबाउट एक्टिंग, मुझे वो देखना पड़ेगा, तो आई एम श्योर उसमें भी शी इज टू गुड। So please guys go follow her and support her. कंटिन्यू। I'll say please guys go follow and support each other because I think किसी का कुछ जाएगा नहीं, पैसे लगने नहीं है यार, फॉलो ही करना है, कौन सा आपका पैसा लगेगा इसमें, कर लो इतना।
मैं गई थी कोलकाता, सॉल्ट लेक के पास एक मैं विजिट की थी, वहां पर एक थिएटर है, वहां पर मैं प्ले की थी, सॉल्ट लेक आई थिंक कोलकाता। तो वहां मैं गई थी, तो अगर और एक बार मौका मिला कोलकाता जाने के लिए, ऐसा कुछ शो करने के लिए, मैं पहले आपको पिंग करूंगी कि नेक्स्ट टाइम गोइंग एंड आई एम गोना मीट यू डेफिनेटली, सीरियसली मैं पहले आपको ही पिंग प्लीज करूंगी कि मैं प्लीज, आपसे पक्का, 100% जरूर याद से करना। और अगर नहीं पक्का। किया तो मैं 100% आपको ब्लॉक कर दूंगी। पता चला आप कैलकाटा आए और मेरे को पता ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपसे मैं खुद बहुत ज्यादा बेताब हूँ मिलने के लिए, क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है एंड द वे यू इंटरेक्ट, मतलब मेरे को लग रहा है कि सेशंस में हम लोग की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई। हाँ अरे पॉइंट तो वही है। लाइव सेशन अलग बात है, यहाँ दोस्ती यारी होने की बात है। एक्चुअल मोटिव तो दोस्ती यारी की है। प्लीज मैम, मैम प्लीज रिप्लाई मी ऑन इंस्टाग्राम, शौर्य सिंह मैंने आई टाइप। विल, आई डेफिनेटली रिप्लाई। आप मैसेज भेजो, मैं अभी आफ्टर द लाइव आई रिप्लाई। Okay, Mantu Bisway. This time I want to say something from Mantu Bisway. Mantu Bisway, he is also an renowned actor, and he is doing so many projects in Hollywood industries. So वो भी आपके लिए hi लिखे. He was also waiting from yesterday. कहाँ पे? मंटू बस। हाय मंटू, आई एम ग्लैड, आई मीन आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन योर वर्क बट आई वुड लव टू सी आपका जो भी, अगर कोई भी आपके प्रोफाइल में है, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी इट। डू सेंड अक्रॉस, मुझे अच्छा लगेगा। So तो हम हाय। जैसे उड़ीसा से भी जिन लोग हैं फॉलोअर्स, वो लोग सबको ही आपको देख रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश फील कर रहे हैं कि आप लाइव ज्वाइन किए हो, इतने सारे बातें इंटरेक्ट कर माय रहे हो। प्लेजर। सो आपको उड़िया उड़ीसा के लोग बहुत स्वीट है, मुझे पता है। उड़िया आती नहीं है बट उड़िया बहुत सिमिलर है बंगाली से, तो मुझे समझ आता है। मुझे भी इतना क्लियर बंगाली नहीं आती, लेकिन मेरे को बंगाली लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मेरी मैक्सिमम टीचर्स बंगाली थी, एंड जब वो बोलती थी मेरे को समझ में आता था, एंड द वे दे स्पीक्स ना, मैं उनको सिर्फ देखती रहती थी कि वाओ कितना अच्छा बोल रही हैं। काश मैं भी बोल, मतलब उनका जो बोलने का स्टाइल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, बहुत क्यूटली बोलते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हाँ हाँ। आई मीन एक्चुअली सबके लैंग्वेज के ऊपर, एक्चुअली मैं खुद बोलती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता। होता है ना कि आप अगर खुद वो लैंग्वेज बोलते हो तो आपको लगेगा जैसे नॉर्मली तो है, इसमें क्यूट लाइक क्या है। बट हाँ हो सकता है, जैसे मुझे पंजाबी अच्छा लगता है और दूसरे उड़िया अच्छा लगता है। ये सारे लैंग्वेजेस मुझे स्वीट लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट में नेपाली अच्छा लगता है मुझे। वाह। सो थिएटिकल ट्रिपलेट्स, ये तीनों पता है ट्विंस है, तीनों ट्विंस है, हमारे डॉक्टर्स हैं। हाँ यू मीन तीनों, ट्रिपलेट? हाँ ट्रिपलेट्स राइट, Oh थिएटिकल my God, I have to see them. ट्रिपलेट। That's amazing. अगर मैं बोलूंगी, आप तो वैसे भी लाइफ में ऐड करते हो, तो कभी होगा तो इनको भी ऐड कर दीजिएगा, तीनों इक्वली Please, परफॉर्म, please. तीनों एक जैसा ड्रेस भी पहनते हैं और डांस भी एक जैसा ही करते हैं। सो उन्होंने लिखा है, मोना बातें हो गई। यू बोथ आर लुकिंग स्टनिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। Oh, thank you so much, Theatrical Triplets. You guys are so cute. Please मैं do join my live. I would love to see you guys. एक्चुअली मैं बोलूंगी, जब भी वो आपको ऐड करने के लिए बोले कि मुझे ऐड कीजिए, आप डेफिनेटली ऐड कीजिए। आप जब देखोगे उनका एक्टिविटी ना, लिटरली विल इम्प्रेस ऑन हर, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, एक्टिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, तीनों डांस भी एक साथ जब करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, एंड लकीस्ट गर्ल्स, लाडली भी हैं अपनी पेरेंट्स की। सो बहुत ही सो Wow, I'm sure. So lucky यार। Triplets मजाक है, my God. I mean हजारों में एक होते हैं ये लोग। तीनों का नाम है स्वरूपा, स्वरूपा, श्रीतिका एंड समीरा। एस एस में तीनों का Okay, नाम है। that's a tongue twister. या निशा, निश यू आर सच अ स्वीट पर्सन, आकाश परीख ने लिखा है। कहाँ है ये? प्रिया हाय, सौर्य सिंह Thank you राठौर, so much, आई लाइक योर Akash. वेरी वेरी मच। Thanks a lot. Thank you all, guys. You guys are amazing. It's only because of you people. यस, अनुज गुप्ता, पीछे फोटोग्राफ कितनी अच्छी लग रही है आपकी पीछे निष्ठा। ये देखो। हाँ, शी इज क्यूट एज ऑलवेज। मोना, हमारा नाम तो बोलो। आकाश, ओके आकाश, आपका Hey, नाम Akash. श्योर कैसे मैम। हो आप? प्रिंस हेलो, एंड थिएटिकल ट्रिपलेट्स ने आपके लिए लिखा है श्योर मैम। वो Okay, जैसे yeah. Okay. सेशन ज्वाइन करेंगे, बिगेस्ट 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 फैन इन द वर्ल्ड, शौर्य सिंह।
Shaurya Singh, you are too sweet. Thank you so much. Stay blessed. I will definitely get back to my DM. यस, आप निष्ठा को जैसे भी करके टेक्स्ट करिएगा, निष्ठा जरूर रिप्लाई देंगे, क्योंकि अब जब मेरी रिप्लाई वो ने दिया है तो सभी मैं कोशिश कर, कभी कभी हो जाए मिस आउट, माफ कर देना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इधर उधर चला जाता है मैसेजेस। हाँ, वो तो सही है। रिया ने लिखा है, हाय निष्ठा दी, मोना दी, यू बोथ आर वेरी क्यूट। थैंक यू, लव यू आई टू। नो, she's very pretty. She's very pretty. एंड निष्ठा इज वेरी क्यूट एंड आई लव हर चिक्स। मैं हमेशा बोलूंगी, अभी भी बोल रही हूँ, ले लो, ले हंसती हूँ, लो, प्लीज ले लो। पिंक आ जाती है ना, बहुत ज्यादा क्यूट है। निश मुखर्जी, और शायद बाकी ऐड नहीं करोगे? यस, थोड़ा प्रॉब्लम है, आज नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग का भी Sorry, आज 10 मिनट में एंड हो जाएगा। फिर बहुत ही अच्छा लग रहा है निष्ठा से कन्वर्सेशन करके, एंड स्पेशली उड़ीसा के my pleasure. ज्वाइन किए हैं। सो मैं उड़ीसा के सारे लोगों को बोलूंगी, हमारे उड़ीसा से जो लोग ज्वाइन किए हैं इस सेशन में, कि प्लीज निष्ठा को फॉलो अप कीजिएगा। निष्ठा इज अ रियल स्पिरिट एंड मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो फॉलो मोनाली, प्लीज सपोर्ट हर, शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, so do follow her. थैंक यू सो मच। तो जाने से पहले निष्ठा मैं पूछूंगी और एक क्वेश्चन, व्हाट यू लव मोस्ट इन योर लाइफ? I love most is traveling and dancing, and having spending time with my friends and family. Wow. How do you treat people who can do nothing for you? I treat them as human beings and like everyone else, because I believe in empathy over sympathy. तो मुझे लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई कुछ आपके लिए करे तो ही आप उनको अच्छे से ट्रीट करो। एंड सेकेंडली, हमें पता नहीं होता है कब कौन हमारे लिए कुछ कर जाता है, जस्ट दैट छोटी छोटी चीजें हम नोटिस नहीं करते हैं, बट अल्टीमेटली आई थिंक एवरीवन इज डूइंग समथिंग और द अदर फॉर यू। हमारे Wow. इंडिगो में जब रिक्रूटमेंट होता था, there's a line, it's a very cute video, I don't know किसी ने देखा है कि नहीं, प्लीज जाके देखना अगर देखा है तो। someone or the other is always packing your parachute, you just don't know it yet. तो आपके लिए कोई ना कोई, आप जहाँ पे भी जिस मुकाम पे हो उसके पीछे कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपके लिए कर ही रहा है, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो उबर ड्राइवर हो, आपको उबर में चला के लेके जा रहा है, तब जाके उस जगह तक पहुंचते हो, तो वो भी आपके लिए कुछ कर ही रहा है बेसिकली। Too sweet. बहुत स्वीट आंसर्स भी दे रही हो निष्ठा, उसीलिए लोग आपसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं। आपका आंसर्स भी उतना ही स्वीट है जैसे आप लोगों को प्यार भी करती हो। सो आर यू फाइंडिंग योर ड्रीम जॉब और यू आर डूइंग क्रिएटिंग इट? आर यू फाइंडिंग? I'm not finding my dream job. Maybe I'm creating it. Yeah, maybe I'm creating it. Yeah. So what do you afraid? What do you afraid of it? Anything you I'm afraid? afraid of losing people from my life. I'm very scared of losing people because I love my people, so I don't want to lose them. So what's your dream project? Anything? Dream project? Yes, there is. Good question. ये मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है वैसे। So I want to have my own NGO which has a old age home and it's a orphanage at the same time. तो मुझे एक वर्ल्ड वाइड एनजीओ खोलना है which will be scattered all across the world, not just India, but I would want to have it mostly India because जरूरत इंडिया में ही सबसे ज्यादा है, but old age home mostly outside India also because I don't feel good when I go to places जहाँ पे घर वालों बच्चे अपने पेरेंट्स को अबैंडन कर देते हैं। कुछ लोगों को घर अडॉप्शन आई थिंक लोगों को ट्राई करना चाहिए। जब उनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है तो एक बच्चा आप अडॉप्ट कर ही सकते हो, किसी और का घर बस जाएगा, तो इतना तो कर ही सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू अनदर चाइल्ड, एक वुमेन के लिए भी बहुत पेनफुल होता है। मे बी आई एम नॉट अगेंस्ट इट, जिनको चाहिए खुद का बच्चा वो कर ही सकते हैं, बट आई थिंक अडॉप्शन इज अ ब्लेसिंग। तो आप अपना एक बच्चा करो और एक अडॉप्ट कर लो, इट्स नॉट अ बिग डील। Exactly. Very nice. So if you get a chance in Bollywood industry for any acting line and all, do you agree? Are you interested for that project? डिपेंड कैसा प्रोजेक्ट होगा। मुझे सारी चीजें शायद पसंद नहीं आए, कुछ कुछ चीजें शायद मैं डिनाई भी कर दूं, डिपेंड करता है क्या आएगा उस हिसाब से। Favorite actor? ओके, सो आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी पर्सन, मुझे कोई भी सेलिब्रिटी एज सच क्रश नहीं है। आई बिलीव कि वो अपना काम करे, वो आर्टिस्ट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ 100%। फेवरेट फैन आई लाइक नासिरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ऐसे ही मुझे यूजुअली सारे वर्सेटाइल एक्टर्स पसंद है जो पुराने थे। Okay, what are the 5 things you love about yourself?
What are the five things Five you things I love. I honestly don't think I am the right person to say that I love about myself. मुझ में ऐसा कुछ lovable तो है नहीं. नहीं है कुछ तो जरूर होगा जो आपको पसंद आता होगा अपने I कुछ don't know. I mean, मैंने कभी वैसे सोचा ही नहीं कि मैं अपने बारे में ऐसे कुछ बोल पाऊँ. I think maybe because I am a person, I'm a people person. तो मुझे लोग uh, मैं बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर सकती हूँ लोगों से. मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं वो वेवलेंथ मेरा मैच हो जाता है. मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होती है किसी से बात करने से पहले, या होता है ना कि थोड़ा सा टाइम लगता है लोगों को एक वो पेस बनाने में, कंफर्ट जोन. तो या दैट वन थिंग आई लाइक कि भाई मैं बहुत बात कर सकती हूँ. आई एम नॉन स्टॉप. मतलब मेरे को बोलने के लिए अगर छोड़ दो चाबी लगा के छोड़ सकते. मैं भी बहुत टॉकेटिव लड़की हूँ, बहुत ज्यादा बात करती हूँ, पता चल रहा होगा. सो बहुत सारी अच्छी बातें की हम लोग. तो लास्ट क्वेश्चन वाज द बेस्ट क्वेश्चन. Whom do you think that this year he or she will be the winner of Roadies Revolution 2K20? Because आप रोडीज के ऑडिशन में थे, तो आपके हिसाब से किसको लग रहा है कि कौन बनेगा इस बार रोडीज का विनर? देखो मैं रिवील नहीं कर सकती है, यही तो दिक्कत है. According to you, जो अगर पता चल गया, मेरे को पता है शूटिंग ऑलरेडी ओवर हो गया होगा, लेकिन आपके हिसाब से लग रहा है कौन बनेगा? या तो माइकल या तो फिर भावेश, हामिद. डेफिनेटली भावेश का नाम ही आता है, लेकिन भावेश अब अच्छा परफॉर्मेंस ज्यादा, लेकिन भी जरूरत है, टीम वर्क की जरूरत है, जिस वजह से आप वोट आउट करते हो. बहुत सारी चीजें होती है, किस्मत भी एक चीज होती है, कभी कभी किस्मत नहीं काम करता है. सो ये एक लास्ट क्वेश्चन भी जानना चाहते हैं, बिकॉज आप भी रोडीज से बिलोंग करते हो, देन कुछ आई थिंक जो माइकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग. माइकल, जयंत, हामिद, इन तीनों में से एक ही होगा. आकाश भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, मुझे लगता है कभी कभार अच्छा खेलता है आकाश. ओके, अकॉर्डिंग टू यू माइकल, अकॉर्डिंग टू माइकल, जयंत या हामिद, ये तीनों में से एक ही होगा. हामिद के भी चांसेस बहुत हाई है क्योंकि हामिद टास्क अभी तक उसका दिखा नहीं है, बट आप लोग को बाद में पता चलेगा. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. वो बंदा टास्क जितना कर सकता है ना, वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा है ना जो चुपचाप रहेगा, लास्ट में बॉम्ब फोड़ेगा. तो वो ऐसा बंदा है. लाउडर देन वॉइस. आकाश इज ऑल्सो गुड. आकाश के चांसेस है, बट समवेयर गेम में ना आपको ब्रेन, बहुत बहुत दिमाग का भी जरूरत है वहां पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वोट आउट चीजें, वो सब के लिए आपको बहुत सारे गेम खेलने पड़ते हैं, माइंड गेम्स भी होते हैं. तो उस हिसाब से मुझे लगता है आकाश के चांसेस थोड़े लो है. तो माइकल बहुत सॉर्टेड है, जयंत भी बहुत सॉर्टेड है, क्योंकि वो दोनों तरफ से न्यूट्रल खेल रहा है. एग्जैक्टली. जयंत टफ दे रहा है, मैं देखी हूँ जब भी वो हामिद का भी सेम सीन है. वो भी एकदम चुपचाप से निकल के धीरे 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 जा रहा है, क्योंकि उसको पता है वो वोट आउट नहीं होगा. तो ही इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट. वेरी स्टाफ. वैसे लड़कियों में कौन ज्यादा लग रहा है कि शी और ही विल बी द? लड़कियों में चांसेस हाई है आरुषि और निशा के. निशा, आरुषि निशा, तो योगिनी और आरुषि चल रहा है, लेकिन निशा के भी हो सकते हैं, बिकॉज आई मीन वो बाद में बहुत अच्छा खेलेगी. आई एम गेसिंग. नाइस. बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें सुन के, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज अबाउट दिस, बिकॉज ये सब हो सकता है, लेकिन जितना भी आपने शेयर किया ना, बहुत ही अच्छी बात है. एंड उड़ीसा के जितने भी पीपल है, वो लोग भी जानने में पाए कि कुछ इस चीजों के बारे में कि अंदर क्या होता है, जीडी में क्या होता है, कितना टफ होता है सिलेक्शन, और सारी चीजों को क्लियर करके वहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है. सबको बोलते हैं यार रोडीज है, स्क्रिप्टेड है, वो चले जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. जब आप भाई GD1 GD2 भी होता है. GD2 तो अलग ही खतरनाक होता है, प्रोडक्शन वाले बजा देते हैं. GD2 में आपकी बजाई जाती है बाकायदा, फुल रोस्ट करते हैं आपको करके. प्रोडक्शन के जो मेन प्रोडक्शन टीम बैठा रहता है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब, एंड दे विल लिटरली चेक ऑन यू कि आपका कितना लाइक आप कितना वो कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो गुस्सा, और आप कितना रोस्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीजें GD2 में होती है. गेम खेलना है भाई हम लोग को, अब तो अच्छे से आपका लेंगे, फिर उसके बाद गेम में घुस जाएंगे. वो चीज सीरियसली. सो ऐसा कुछ होप है कि नेक्स्ट ईयर अगर फिर से कुछ ऐसा रोडीज का कुछ नया टैग में आया तो आप जाओगे, कि कुछ सोची नहीं?
अगर हुआ तो मे बी, क्या पता। मैंने सच में सोचा नहीं है, बट कोशिश कर सकती हूँ। अगर किसी ने मुझे पूछा तो डेफिनेटली आई माइट गिव अ ट्राई। वेरी नाइस निष्ठा। अब घर में कैसी हो, कैसा चल रहा है, जाने से पहले पूछूंगी। और और वो बस सेशन कैसा लगा मेरे सबसे साथ? एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज बस जिंदा रहना इस साल, और कुछ करने की कोशिश मत करो इस साल, तो बस जिंदा रहने की कोशिश करो। क्योंकि एग्जैक्ट। आई मीन काम धंधा तो चलो बाद में फिर भी वो सब सॉर्ट हो जाएगा, पर एटलीस्ट इफ यू आर हेल्दी, ओनली देन यू कैन डू एनीथिंग। And moreover, take care of your family, because parents and all, everyone at your home. So yeah, please do take care of your family. Stay safe, stay healthy, eat well. That's all I will say. वेरी नाइस निष्ठा। सो लास्टली मैं पूछूंगी कैसा लगा लाइव सेशन आज का मेरे साथ? I एंड was just going to थैंक come to that. Thank you so much, Monali. I mean, I can't tell you how amazing it was. बिकॉज आप बहुत ही पोलाइट और हम्बल नेचर के हो। लाइक यूजुअली देर आर पीपल जो बहुत लाइव लेते हैं एंड वो कांस्टेंट इंटरप्ट करते हैं, यू नो। एक इंसान जब एक होस्ट होना, अच्छा होस्ट तभी पता चलता है जब आप एक गुड लिसनर भी हो, क्योंकि आपको सामने वाले को सुनना पड़ता है बहुत देर तक, एंड दैट्स नॉट इजी। तो यूजुअली लोग बोलते रहते, काट देते बीच में बात, एंड आप जब भी रुकते हो, आप यू नो उस ठहराव के साथ, ओ सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। तो यू नो ये छोटी छोटी चीजें प्रूव के आपने बहुत अच्छे से लाइव सेशंस लिए हैं, आपको एक्सपीरियंस है कि कैसे किसी इंसान का लाइव सेशन लेना चाहिए। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू गॉट मी इन योर लाइव सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट, सो पोलाइट एंड सो हम्बल। यू सो मच फॉर योर स्वीट वर्ड्स, काइंड वर्ड्स टुवर्ड्स मी। एक्चुअली मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपने, मैं जैसे ही क्वेश्चंस किए आपने बहुत पोलाइटली, बहुत लवेबल आंसर्स भी दिए मुझे। एंड जितना मेरी तारीफ की है ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड बहुत यू ही अच्छा डिजर्व लगा। इट। एंड राधा कृष्ण से भी मैं लास्ट टाइम इंटरप्ट की थी, तो वो भी बहुत अच्छा आंसर दिए थे एंड बहुत अच्छा सेशंस को कंप्लीट किए थे। एंड मैं उसी लिए आपको बोली कि कभी कभार लगता है कि नहीं इनसे इंटरेक्ट करूं कि नहीं, ये सही पर्सन है कि नहीं, फेक कि नहीं, बट आपने सारी चीजें डिटेल्स देखी, मेरे प्रोफाइल में देखी, नहीं नहीं शी इज डूइंग इट, देन आपने ज्वाइन किया। सो थैंक्स अ हाँ लॉट जी, दैट निष्ठा। अगर इट्स टोटली माय प्लेजर। तो डेफिनेटली वी विल डू दैट। सो आगे आगे मौका मिलेगा तो हम लोग लाइव सेशन करेंगे। श्योर श्योर श्योर। पक्का। सो डांस के अलावा अभी तो थोड़ी देर में हम लोग एंड ही करेंगे सेशंस को। डांस के अलावा और कुछ पसंद है, मतलब डांस कोरियोग्राफी के अलावा? डांस के अलावा आई एम इनटू स्केचिंग, मैं थोड़ा बहुत स्केचिंग करती हूँ। गाना तो ये लोग जबरदस्ती गवाते रहते हैं, ये देखो आ गया गौरव। हाँ, there's this guy Gaurav, he is a wonderful singer. I mean, I don't know, you can join him later. देहरादून से है वो, बहुत अच्छा गाना गाता है। उसके खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स है which you must listen. He is superb. So yeah, गौरव प्लीज। और मैं क्या ही तुम्हारी और तारीफ करूँ यार। इससे पहले निष्ठा एक छोटा सा गाना हो जाए। एक्चुअली बंगाली फिल्म हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मुझे पता है। मैं अच्छा गाना नहीं गाती, मैं बाथरूम सिंगर, रियली मैं एकदम बाथरूम सिंगिंग करती हूँ। उसके अलावा मैं बस एक मतलब मुझे स्केच वेच वगैरह बनाना पसंद है, फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत शौक है। बाकी मैं क्या बोलूं, आई एम अ पर्सन जो कुछ भी करा लो, कोशिश तो सब कुछ कर लूंगी। मे बी परफेक्शन उतना नहीं होगा, बट करना सब कुछ ही पसंद होगा। जेन्युइनली वैसे भी मैं पूछूंगी। हाँ, आप डांस का वीडियोस जो भी अपलोड किए हो ना, मैं डेफिनेटली फॉलो अप करूंगी, क्योंकि मुझे आपका डांस बहुत ज्यादा पसंद है। सो कभी थैंक यू सो कभी मच। मुझे मैं कुछ, बहुत और भी वीडियोस डालूंगी अभी रिसेंटली, आई विल कम अप विद मोर डांस वीडियोस, तो आप देख सकते हो, यू कैन स्टे ट्यून। यस, आपके फ्रेंड्स भी जितने ज्वाइन किए थे सभी को हाई कह दूंगी। जाने से पहले निष्ठा, आपके फैन फॉलोइंग्स को क्या कहना चाहोगे, जितने सारे ज्वाइन किए? ऑलमोस्ट आई थिंक अभी तो 100 एबव हो गए होंगे, जितने टेक्स्ट आ रहे हैं, हमने बहुत सारे टेक्स्ट मिस कर दिए हैं। सो प्लीज अपने सॉरी गाइस, राजा एंड ऑल ऑफ यू ऑल, प्लीज हमारे कॉन्वर्सेशन के बीच में हम कमेंट्स थोड़ा भूल गए, सॉरी अबाउट दैट। Another singer who's super. So there's this guy Anirudh who's amazing. He's a wonderful singer. इसके भी ओरिजिनल सॉन्ग्स है, आप सुनोगे तो आई मीन इट विल ब्लो योर माइंड कि कोई बंदा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। तो गौरव एंड अनिरुद्ध बोथ। सो अरे नहीं होता कभी मिस। निकी ने लिखा है मच लव टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर लव टुवर्ड्स अस थैंक यू निष्ठा सो मच निकी। and you are best Rudy, you are my heartbeat,
शौर्य सिंह लिखा है यू आर बेस्ट रोडी, यू आर माई हार्ट बीट। ओ माई गॉड, वेरी नाइस। हार्ट बीट मत बनाओ यार, कल को कुछ कुछ इधर उधर हो जाएगा, तुम्हारा हार्ट बीट नहीं बंद होना चाहिए। आप अपना हार्ट बीट थोड़ा संभाल के रखना।